Good morning to all of you. My name is Anshika Kumari. I read in class 7 by Scholar Educator Competition School. तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। इस चैप्टर का नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम। ए कंप्यूटर सिस्टम द कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ए सॉफ्टवेयर रन computer system effect to do some used tasks. A computer system has following main components. First, hardware. Second, software. Third, users. Hardware, the device or part at computer that we can touch. Software, the set of computer programs that are needed for running and operating computer system effectively. Users, the people who use the hardware with the help of software to do useful work. Computer hardware, the physical parts of computer that we can touch are called computer hardware. The hardware components of the computer can be divided into two categories. First, main hardware parts, the components that fixed on computer motherboard, example CPU, RAM, ROM, etc. These components are actually to do programs inside the computer. Second, the peripheral device, the device that are attached to the computer main parts to expanded function power, example keyboard, mouse, joystick, etc. We have read about the common peripheral device of computer in earlier classes. Where keyboard, mouse, joystick, scanner, speakers, etc. Let's now study about some advances in peripheral device. Peripheral device, visual keyboard. The visual keyboard can be understood as an impress in actual keyboard format. The laser slide. It sends the fingers movements as users then translate the keyboard. Memory card. Nowadays, memory card are popular storage medium in many electronic devices such as digital camera, mobile phone. They are plus memory, storage cards in large storage capacity. A smart card. A smart card is a credit card sheet made of in plastic. It connects immable in memory in chips and an IC integrated in circuit. It is used to store in person information. The information stored can change in update in memory if needed. Optional mark reader. A special mark such as square in bubbles and peripherals. An examination answer sheet and questions. The user fills in their square in bubbles with pencil or pen. Then insulatement that read this mark is called an optional mark reader. Magnetic ink chatters readers. This method is used by bank to process the terminals in volume of chips. Inside the account number, a branch code, CPU's numbers are printed the button using the special marking ink. Official chatters readers, OCR. OCR is scanning a text document into a graphics image, then using of software and decode in the graphics picture elements back into the text in the computer reveals in from. You can create a text document in your computer from the printer methods. Webcam. A webcam we attach to your computer can make you visible using the internet is medium. A webcam is low as relation a digital camera that is attached to your computer. A software connects the computer to do camera and graphic. Software connect to the computer. The camera and graph format in perfectly. The software in graphics in still in image of the camera. The software in the turn of image and normal JPG file and upload into the webcam server. In video in configuration and video in chatting, all users webcam to make them solve in visual or the switch. Graphics tablet. A graphics tablet is computer peripheral device that consists of large surface of for drawing and attach in system in drawing in surface. It allows simple method integrate and draw in graphics art into the computer. Computer software. Computer hard connect in any on its one unless in support by computer software. Yes, computer software is set of program actual on computer to process the data given by the users. Software are classified into the following two categories. First, system software. Second, application software. Software. System software and application software. A system software, operating system, utility software, device drive. Application software. Generation in proposed application software, customized in application software. System software. System software refers to a set program
which have been written to control the function of the computer system. It is a system software which are on the application software. System software can feature in category into first operating system, दूसरा unity software, तीसरा device drive. Operating system. The operating system is the first software which we load into the computer before we load any other software like application software. The operating system software is set of program which allow you to communicate in easily with the computer. It acts in interface in between the user and the hardware. Operating system perform best tasks such as first, accept the input in from the keyboard. Second, sending in output in monitor in a printer. Third, keeping in track in file and directions in the disk. Fourth, controlling in the CD drive the hard disk printer etc. 5. If the controlling in the work. First, second, Unity software. The Unity software is a small program purpose in a special in function in lesson in magnet in the system resource. A operating system is the sum but in Unity magnet, disk, drive, printer and other device drive. A device drive is a system software that controls in particular types of device attached to your computer. It converts inside given by the operating system from the which are understanding by particular device. There are devices in the printers, display unit, pen drive, scanner, etc. A large number of devices drive in bullet into the operating system. It drive of the particular device that will load into the operating system. You will view it inside it. Application software. An application software runs on the system software and allow user to the performance application in text. Example: MS Word, Photoshop, etc. Webcam is a browser of example of application software. The application software can be categorized as first, general purpose application software, दूसरा customized and made of application software. General purpose application software. This is a types of application software that we can use to verify in text in limited. Two on the particulars in function of some example is generation in application software. First, word process, aspiration, medium player with let you listen in music, watching movie, computer, software to create in person. Software is connect in computer. Programming, laughing like bass and logos, etc. Customized in application software. The software are created according to the user requirement. When a particular system gets computer is customized software as which create in process. Some example of customized application software are given below. Account software is magnet into the account instance of company. Making of software is making account to a bank, hospital management software, education software. Software is helping blind people to read. Fee in colleges and software is collection into the female student. Thank you. Next of the English, chapter 4, A Great Lady, एक महान महिला. There were many people who protect ignorance in unfair laws particulars. They had decided that we would illustrious win such as law is fog of equality, that win freedoms and gave of feel proud of them. Those people were Rajaram Mohan Roy, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, etc. Rosa Parks was alone with one. हमारे देश में बहुत से महान लोग थे जैसे राजाराम मोहनदास अब्राहम लिंकन महात्मा गांधी It is the accident according to the dot is necessary that we all laws in rules in welfare. The accident we to look in called Montgomery in American. It is the rule of black in passenger to give seat in buses in white passenger into come and head of the bus of round the black door in the could of get into the bus and again to travel in standing. अमेरिका में एक रूल था कि जो ब्लैक लोग सीट पर बैठे रहेंगे तो यदि वाइट पैसेंजर आएंगे तो ब्लैक लोग उठकर और बस में एक पीछे डोर होती थी उधर से वो उतर जाते थे और वाइट पैसेंजर आके बैठ जाते थे. Rosa Parks was African American woman who worked in Dressmark in shop. It is currently in work when they won 1st December 1955. Rosa Parks was been working in all day. By the end, they invented rest as the were getting into the bus stop to go in the bus. She is found when sit in the bus
After playing in fair and sit the gratefully into the fire, in petting because she was very treated on the rest, but the driver bus was not in a way interest. He did not know his name, but he said he was not white passenger. She was a black passenger, and that he thought was all needed to know. एक दिन फर्स्ट दिसंबर की बात है, जब रोजा पार्क काम से लौटी थी तो बस में जब बैठी तो जब एक वाइट पैसेंजर अंदर है तो ड्राइवर ने सारी सीटें फुल हो गई थी तो ड्राइवर ने बोला तुम उठ जाओ, तुम ब्लैक पैसेंजर हो, यहाँ पे वाइट पैसेंजर बैठेंगे. But was making mistake when it and cost of company the lot in money. It is happened in bus in started in the warning while in range of passenger is said in many them in were white American. Whenever in white passenger got in the bus in black passenger get up from the seat and move it in a way. Rosa Park has a lovely family. It was inverse in natural. He has spoken a quantity in soft voice. The always in a country in broken rules. On that one day, all the sitting in black passenger gave in their seat in white American expand. Rosa Park. She was has noticed when was happening in a white passenger stopped in the door in communicated look in still in the moving and still. जब ड्राइवर ने बोला बस उतरने तो नहीं उतरी. उन्होंने बोला कि जब जिस तरह वाइट पैसेंजर पैसे दे उस तरह मैं भी पैसे देकर बैठूँ, मैं नहीं उतरूँगी. और ड्राइवर ने उन्हें वार्निंग तक भी दी. इट वॉज अ टाइम इन फॉर बस टू लीव इन फ्रॉम ड्राइवर इन कुड विन स्टार्ट टू द बस बिकॉज वाइट पैसेंजर इज स्टैंडिंग एंड ब्लैक पैसेंजर वॉज नॉट रेडी टू गेट अप एट द अदर पैसेंजर विन ग्रीव इम्प्रेड. But they gave an angry look. There in Grumman in Crosset at that Rosa Park was spoken Mobet and he still. She thought in why should I get up? I paid with the pen from the white and passenger paid my ticket is not inside and cheaper so that we had a more with trade he had another in old distables. और वाइट पैसेंजर बोला तुम उठो, तुम ब्लैक पैसेंजर हो. वह फिर भी नहीं उठी क्योंकि वह एक बहुत लवली फैमिली से बिलोंग करती थी और उन्होंने अमेरिका में जो ये रूल था ब्लैक पैसेंजर खड़े हो जाएंगे जब वाइट पैसेंजर है, तो वो नहीं उठी और बोली ये रूल मतलब अनफेयर से. He has asking then we because in white that we can be right. That in moment we to look and decide. She thought rule and unfair. The rule is ought to be fair. It is rule in unfair to Mendes. He thought we not be rule book and therefore in out not in obey with people. In obeying such and bad rules it visual a start in book in forever. Someone should be something about you someday. I think they have come. When she did not move in driver in and got it angry. He thought if you let in sit and leave in white passenger standing, he is breaking in the law and company could be in punished in for it is they had good in problems. He got in from his seat and went to toward her. He said, "Get up and go to the back." But Rosa said, "Still, I told you get up." He said, still Rosa didn't move. The driver got in the bus and brought in the police. They arrested in Rosa Park and in jail because she has broken the law. As soon as knew Rosa Park arrested in spared in over in town. The black passenger of Montegri in a stool in fight in for his in out on jail. The knew it could have not fight with police, so they decided to fight with the bus company style. और फिर जब वो नहीं उतरी तो बस का ड्राइवर था वो गुस्सा करने लगा और फिर उसने पुलिस को बुला लिया. इसने रोजा पार्क को अरेस्ट कर लिया. As we saw in news spreading over town, the black people is money stored in fight to the gate of outer jail. There is new as the could have fight and with the police, so they decided to fight with the bus and company inside. There is a boycotted in buses in a stop using them. No black passenger will use to the city. Buses in on site in Roja Park is free. The side and inside there is private in cars or taxis to go to the working place.
This went to more with than in years. It is actually 301 day, and during to the boycott into the company is millions in dollars because the black passenger users than more white passengers in the buses in almost in impaired with the black passenger. और जो ब्लैक लोग थे वो मतलब जब रोजा पार्क जब अरेस्ट हो गई तो वो सभी मतलब धरने पे बैठ कर और कोई मतलब बस में नहीं जाता था, जिससे बस में बस की उतनी कमाई नहीं होती थी और वो कंपनी में मतलब लॉस होने लगा. द सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइडेड ऑन फेयर्स इन पब्लिक इन ट्रांसपोर्ट इन सर्विस दे सेड वी ऑर्गेनाइज्ड इनटू द लव इन द कंटेंट. So it is Rosa Parks was fought of equality and freedoms. The movement in millions' minds against the black American people fight in fairness and justice and all to the human being. CBS because international icon research to the research segregations. She has original in communication with cable in right-wing leaders, inquired in work leaders in Martin Luther King. Yes, she is also helped him acquired in national promotion in civil rights movement. She was called the mother of the modern day civil rights movement by the US in Congress. Thank you. Next है SST Chapter 1 मध्ययुगीन देश भारत. भारत के इतिहास को क्रमशः 3 भागों में विभाजित किया है. प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत, आधुनिक भारत. मध्ययुगीन भारत में इतिहास की एक लंबी अवधि जो प्राचीन आधुनिक भारत के बीच में खड़ी है. भारत का मध्ययुगीन काल यूरोप मध्य की तरह इस काल में 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक माना जाता है. इसे 2 अवधियों में विभाजित किया गया है. प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा और उत्तर मध्ययुगीन भारत जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक रहा. इसके पश्चात 19वीं शताब्दी तक आधुनिक काल की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है. प्रारंभिक मध्यकाल का इतिहास राज्यों के लगातार उत्थान और पतन के कारण उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्यों में सतत संघर्ष पर केंद्रित है. उत्तरकालीन मध्य एशिया से उनके मुस्लिम आक्रमणी जैसे तुर्की, अफगान और मुगल यहाँ आए. आक्रमणियों ने उत्तर तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर शक्तियों के बीच युद्ध किया. मध्य की जानकारी के स्रोत. मध्यकाल भारत का अध्ययन विभिन्न स्रोत है जैसे मूर्तिकला, शिलालेख, सिक्के, इमारतें, धार्मिक और धर्म साहित्य. मध्ययुगीन काल भारत को 7वीं से 12वीं शताब्दी तक धर्मनिरपेक्ष साहित्य के प्रयोग में से किया जाता था. मध्ययुगीन काल के इतिहास के लिखित अभिलेख का एक अच्छा उदाहरण है जो हमें काल के विषय में बेहतरीन जानकारियाँ देता है. मध्यकाल की जानकारियाँ मुख्यतः 2 स्रोतों में विभाजित किया गया: पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत. मध्यकाल भारत का अध्ययन विभिन्न स्रोतों से जैसे मूर्तिकला, शिलालेख और इमारतें, धार्मिक इत्यादि. पुरातात्विक स्रोत इसके अंतर्गत जो चीज़ें सम्मिलित हैं वो इस प्रकार है. मूर्तिकला के अंतर्गत देवी देवता एवं शाही परिवारों की मूर्तियाँ सम्मिलित हैं. वह प्राय पत्थरों एवं धातु से निर्मित. इन्हें हमें काल के वस्त्रों की शैली, बालों की शैली के आभूषण की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं. मूर्तिकला से हमें यह पता चलता है कि पहले के लोग देवी देवताओं पर ज़्यादा भरोसा करते थे इत्यादि. चित्रकला. मध्ययुगीन काल के चित्रकलाएँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं. दैनिक चित्रकला, मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला इत्यादि. सिक्के. इस काल के सिक्के दिल्ली के सुल्तानों के मुगलों एवं विभिन्न प्रकार के सिक्के प्रचलित किए गए. ये सिक्के स्वर्ण, रजत, तांबा इत्यादि से निर्मित थे. इनमें हमें मध्ययुगीन की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्कृति जीवन की जानकारियाँ मिलती हैं. ऐतिहासिक इमारतें जैसे महल, मंदिर, मस्जिद, किले इत्यादि स्मारक श्रेणी से रखा जाता है. इन स्मारकों में हमें इस काल की सामाजिक जीवन एवं संस्कृति की जानकारियाँ मिलती है. कुतुब मीनार, आगरा और दिल्ली के लाल किला, ताजमहल, जमा मस्जिद, स्वर्ण मंदिर कुछ प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें हैं. शिलालेख. यह लिखित अभिलेख होते हैं जो सामान्य राजा या अथवा साम्राज्य से संबंधित जानकारियाँ होती हैं. यह अधिकांश शिलाओं, चट्टानों या वृक्षों, मंदिर की दीवारों पर खुदे होते हैं. शिलालेख अमूल्य होते हैं क्योंकि उनमें मध्ययुगीन भारत के सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है. साहित्य स्रोत. प्राचीन भारत में तुलना में मध्यकाल की अधिक संख्या में साहित्य स्रोत उपलब्ध है. ये इस काल के लोगों के जीवन के विषय में विश्वसनीय बिल्कुल ठीक सूचना प्रदान करते हैं.
ये स्रोत हमें शासकों के प्रशासनिक जीवन के विषय में विश्वसनीय बिल्कुल ठीक सूचना प्रदान करते हैं। ये स्रोत हमें शासकों से प्रशासनिक ढांचे के अनेक शासक सिद्धांतों एवं सैन्य उपलब्धियां आदि के बारे में सूचना देते हैं। ये राज्यों की संस्कृति एवं आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के पर प्रकाश डालते हैं। साहित्य स्रोत में अदालती इतिहास के वृत्तांत, राजाओं की जीवनियाँ, फरमान और पत्र, अदालती सूची, जो न्याय करो और मध्ययुगीन यात्रा के वृत्तांत को ताल्लुक सम्मिलित थे। उस काल के जो राजा थे, जब वो कोई यात्रा करते थे तो उसे वो अपने लेखक के द्वारा उसे लिखवा दिया करते थे। मध्ययुगीन भारत में लेखकों ने अन्य विदेशी द्वारा लिखने के लिए कागज का प्रयोग आरंभ हो गया था। इस काल में इतिहास को जानते हुए प्रमुख भारतीय विदेशी लेखकों एवं अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तकों को एक अमूल्य स्रोत है। विवरण नाम है जो कुछ पहले के कुछ लेखक के नाम हैं जो पुस्तकों को लिखे हैं। पहला गुलबदन बेगम, हुमायूं के जीवन के बारे में लिखा गया था। बाबरनामा, बाबर के विषय में लिखा गया था। अबुल फजल, अकबरनामा, अकबर के प्रशासन के विषय में लिखा गया था। अबल मरून, तकई-ए-हिंद, भारत के लोगों को भाषा एवं धर्म एवं संस्कृति के बारे में। मिजहान हुसैन, उन्होंने तकाब निसेसी के बुक लिखा जिसमें दिल्ली के सुल्तान के विषय में था। फिरदौसी जो शाहनामा लिखी थी, शाहनामा शाहजहाँ के जीवन के बारे में था। इब्तुन रिहला, मोहम्मद बिन तगलिन भारत समाज के विषय में था। मध्ययुगीन भारत में धर्मों का उत्थान, मध्ययुगीन समाज के लोगों धार्मिक थे और प्राचीन समय में महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं के रूप में जिन मंदिरों का जन्म हुआ वे उस समय बड़े धार्मिक विकास से जुड़े हुए थे। मंदिरों का निर्माण सामाजिक स्थिति के लिए समकालीन चेतना से जुड़ा हुआ था। भारत में इस काल में एक नए धर्म इस्लाम का जन्म हुआ जो 7वीं शताब्दी में पवित्र कुरान की शिक्षाओं को भारत में सर्वप्रथम प्रवासी द्वारा व्यापारी लाए और बाद में दिल्ली के सुल्तानों के शासक ने इस्लाम भारत को में प्रसिद्ध हुआ। इस युग के दौरान धार्मिक रीति रिवाजों में बड़ा परिवर्तन, भक्ति और सूफी संतों में जन्म और ख्याति था जिन्हें समस्त मानव जातियों को समानता के सिद्धांत का उपदेश दिया। थैंक यू। नेक्स्ट है हिंदी, चैप्टर 5, पुलिस और प्रार्थना। मेडिसिन चौक की एक बेंच पर सूफी बेचैनी से करवटें बदल रहा था। तभी उसके गोद में एक सूखा पत्ता आकर गिरा। यह पत्ता पढ़ने पर पूर्व सूचना थी। मेडिसिन चौक के निवासियों के लिए पाला महाशय बहुत उदार और उनके वार्षिक आगमन की पूर्व सूचना उन्हें भेज देते हैं। सोफी के मस्तिष्क ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि वे उसे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए कमर कसनी पड़ेगी और इसी कारण आज वह बेचैनी से करवटें बदल रहा था। शीत से बचने के लिए सोफी के दिमाग में कई ऊंची कल्पनाएं थी। वह तो यह चाहता था कि आने वाली भयंकर सर्दी से 3 महीने की तरह किसी तरह भी जेल में कट जाए। रहने, खाने पीने की व्यवस्था हम जेलियों के साथ और कड़ाके की सर्दी में पुलिस वालों से बचकर जेल में आराम से रहना, बस यही उसका काम था। बरसों से ब्लैकवेल मेहमान नवाजों से जेल खाना ही उनका सर्दियों का निवास स्थान था। जिस प्रकार न्यूयॉर्क से अन्य भाग लोग हर वर्ष सर्दियां बिताने के लिए रिविरा या पाम बीच के टिकट कटाते हैं, उसी प्रकार सूफी ने भी जाड़े को जेल में बिताने की व्यवस्था की हुई थी। इस वर्ष भी वह समय आ गया था। सूफी था जो सर्दी आने वाली थी उसे वह बचने के लिए सोच रहा था कि मैं जेल चला जाऊं और क्यों ना 3 महीने जेल में ही कट जाए। पिछली रात उसी चौक पर फव्वारे के पास एक बेंच पर उसने रात काटी, परंतु कोट के नीचे घुटनों पर और कमर के नीचे लपेटे हुए 3 मोटे-मोटे अखबार भी सर्दी से उसकी रक्षा नहीं कर सके। इसलिए उसे जेल की याद सताने लगी। शहर के गरीबों के लिए सोने के लिए जो धर्मार्थ व्यवस्था की जाती थी उसे वह पसंद नहीं थी। सोफी के राय में परोपकार और कानून कहीं अधिक दयालु था। शहर में नगर पालिका की ओर से कई सरकार और संस्थाएं चलती थी जहां वह खाने, सोने, सामान्य व्यवस्था हो सकती थी, परंतु सोफी जैसे स्वाभिमान आत्माओं के दान भिक्षा सहनीय बोझ लगती थी। जो सोफी था उसे धर्मार्थ से कई ज्यादा अच्छा कानून लगता था।
चूँकि धर्मशालाओं में हर चारपाई के साथ स्नान करने की सजा और भंडारे की रोटी से हर टुकड़े के साथ व्यक्तिगत जीवन को छानबीन का दंड अवश्य रूप से जुड़ा रहता था। इसलिए कानून का मेहमान बनना ही बेहतर था। सोफी सोचता था कि कानून का मेहमान बनना ही बेहतर है, धर्मार्थ से अच्छा, क्योंकि कानून के नियमों में संचालित होने पर भी अवांछनीय रूप से किसी भी शरीफ आदमी के जीवन की दखल नहीं था। जेल जाने के लिए निश्चय करने ही सोफी तुरंत आवश्यक तैयारियां आरंभ कर दी। जेल जाने के लिए सोफी ने जो आवश्यक तैयारियां थी वो शुरू कर दिया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक आसान तरीके हैं। सबसे सुखद उपाय था किसी बढ़िया होटल में शानदार भोजन किया जाए और उसे बाद में स्वयं दिवालिया घोषित कर बिना शोरगुल हुए चुपचाप पुलिस के हाथों में पहुंचा जाए। इसके बाद वह व्यवस्था कोई समझदार मजिस्ट्रेट के अपने आप कर देगा। उसने सोचा कि क्यों ना एक होटल में जाकर शानदार अच्छे से भोजन कर ले जाए और फिर बिना किसी रोक रुकावट के वह जेल चला जाएगा। सोफी बेंच से उठकर चौक के बाहर निकला और पक्की सड़कों के जाल और लागता हुआ वह पहुंचा जहां 5वीं सड़क बरामदे में मिलती थी। वह बरामदे की तरफ मुंडा और चमचाते हुए होटल के सामने रुका, जहां वह हर रात रेशमी कपड़े की तरह तड़क भड़क जैसी दिखाई देती है। अंगूर की बढ़िया शराब की नदियां बहती हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लगे मिलते हैं। सोफी को कमर के ऊपर पहनने कपड़ों पर पूर्ण विश्वास था। उसी दाढ़ी बनी हुई थी, कोट अच्छा था और बड़े दिन पर किसी मिस्री महिला द्वारा भेंट में मिली थी और टाई के सभ्य होने पर घोषणा कर दी थी। यदि वह किसी प्रकार भी बिना शंका उत्पन्न किए टेबल तक पहुंच जाता तब वह सफलता के हाथों में था। शरीर का वह भाग टेबल के ऊपर दिखाई देता, वेटर के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं जगा सकता था। सोफी ने सोचा कि मूर्ख मुसलमान पंडित आधा पैंग इन सफेद सिगार, इतना काफ़ी होगा। सिगार की कीमत तो $1 से ज़्यादा नहीं होगी। सब मिलाकर कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि होटल मालिक के मन में बदला लेने के लिए भावना उत्पन्न हो जाए। फिर भी तृप्ति इतनी होनी चाहिए कि जोड़ों के निवास स्थान तक की यात्रा आनंद से कटे। परंतु जैसे ही सोफी ने होटल के दरवाजे पर पैर रखा, मुख्य वेटर की नज़र उसकी फटी पालतून और पुराने जूतों पर पड़ी। तुरंत ही सिर और सीधे हुए हाथों से पकड़कर चुपचाप सड़क पर लापटका और इस प्रकार मूक मुसलमान के बर्दाश्त होने पर नौबत अटल गई। सोफी बरामदे के वापस लौटा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वंचित ध्येय से पहुंचने में वह स्वादिष्ट भोजन वाला मार्ग तो काम नहीं देगा। जेल तक पहुंचने के लिए कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। और सोफी ने सोचा था कि होटल में जाकर भोजन कर ले जाएगा और वो पैसा नहीं देगा तो वेटर उसे पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेजेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो सोफी ने दूसरा उपाय सोचने लगा। छठी सड़क के मोड़ पर उसे तरह तरह की चीज़ों से करीने से सजाई हुई एक कांच की खिड़की बिजली की रोशनी में जगमगाती हुई दिखाई दी। सोफी ने पत्थर उठाया और शीशे पर दे मारा। चारों तरफ से लोग दौड़ते हुए और एक पुलिस सिपाही भी आ खड़ा हुआ और सिपाही को देखकर सोफी मुस्कुराया और अपनी जेब में हाथ डालकर चुपचाप खड़ा रहा। जब सोफी ने घर के कांच को तोड़ दिया, जब पुलिस आया तो पुलिस को देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। सिपाही ने तमत मार कर पूछा, शीशा फोड़ने वाला कहाँ गया? सौभाग्य का स्वागत करते हुए सोफी ने व्यंग से कहा, क्या आप इतना भी नहीं समझते कि इसमें मेरा ही कुछ हाथ हो सकता है? सिपाही का दिमाग में सोफी को दोषी मानने से इनकार कर दिया। खिड़कियों को पत्थर मारकर तोड़ने वाला कानून के रक्षकों से गपशप करने के लिए कहीं रुकते हैं। जब सोफी ने कांच तोड़ा तो पुलिस आया तो पुलिस ने पूछा, कांच तोड़ने वाला कहाँ गया? तो सोफी ने बोला, क्या आपको मेरा हाथ नहीं हो सकता कांच तोड़ने में? सोफी ने यह बोला कि कांच तोड़ने में मेरा हाथ नहीं हो सकता, मैंने कांच को तोड़ा। लेकिन जो पुलिस था वो उसे दोषी मानने से इनकार कर रहा था। तो वो फौरन 9-11 हो जाते हैं और पुलिसमैन ने कुछ दूर सड़क पर एक आदमी को बस पकड़ने के लिए भागते हुए देखा और वो अपना डंडा घुमाते हुए उसके पीछे भागा। 2 बार असफल होकर सोफी निराश हो गया और मटर गश्ती करने लगा। सड़क के उस पार एक साधारण शान शौकत का होटल था।
वहाँ छोटी जेब और बड़े पेट वाले ग्राहक आते थे, आया करते थे। घाटिया बर्तन और धूमिल वातावरण, पतली दाल, कंधे मेज पोस। इस स्थान पर सोफी बिना रोक टोक अपनी फटी पालतून और पुराने जूतों समेत जा पहुंचा। वह टेबल पर जा बैठा, पेट भर कबाब, कोफ्ते, केक और कचौड़ियाँ खा गया और तब उसे वेटर के सामने रहस्य खोला कि तांबे की एक पाई का कभी उसने मुंह नहीं देखा। अब बड़े रौब से उसने वेटर से कहा, अब जल्दी ही पुलिस को बुलवाई, व्यर्थ में एक शरीफ आदमी का वक्त क्यों खराब करें। अंगारे की लाल आंखें दिखाते हुए कठोर शब्द में वेटर ने कहा, तेरे लिए पुलिस का सिपाही। उसने अपने साथी को आवाज़ दी और सोफी वहाँ से फिर एक बार डरता से सड़क पर लापट गया। और जो दूसरे होटल में गया, वहाँ पे दो वेटर ने मिलकर उसे सड़क पर लापट गए। शरीर के एक एक जोड़ में खोखला हुआ सोफी उठा और कपड़ों में धूल झाड़ने लगा। आज उसने लिए गिरफ्तारी में मुरकिचा हो चली थी और उसे सुखदायी जेल कोसों दूर दिखाई दे रही थी। कुछ दूरी पर एक दुकान के सामने खड़े हुए सिपाही ने उसे देखा कि हंसता हुआ वह रास्ते से जा रहा था। काफ़ी देर से इधर उधर भटकने के बाद सोफी में गिरफ्तारी की आराधना करने की हिम्मत फिर जागृत हुई। काफ़ी देर सोफी को सोचने के बाद और घूमने उसे फिर से एक बार गिरफ्तार होने की सोचने लगा। इस प्रकार वह इस बार जो अवसर आया था वह ना समझ सोफी को अचूक लगा। मनोहर और सुशील मुद्रा वाली एक नवयुवती एक दुकान की खिड़की के सामने खड़ी हुई अंदर सजी हुई प्यालियों के बर्तनों को कुछ दिलचस्पी से देख रही थी और 2 गज की दूरी पर एक कठोर निकायकृत वाला सिपाही भी नल का सहारा लिए खड़ा था। सोफी ने इस बार औरतों को छेड़छाड़ करने के लिए गिरना तुच्छ गुंडे का पाठ अदा करने के लिए योजना बनाई और अपने शिकार को सौम्य और भोरी सूरत था। कानून के पहरेदार को पास खड़ा देख सोफी को सोचने का प्रोत्साहन मिल गया। सोफी ने मिशनरी महिला द्वारा भेंट की गई टाई और ठीक किया और सिकोड़ी हुई अस्तीनों को कोट से बांधा निकला और टोप को तिरछी आधा से पहना और युवती की ओर बढ़ा और उसी की तरफ आंखों से इशारा किया और उसे देखकर खासा खरा और चेहरे पर बनावटी हंसी लाकर बदतमीजी से गुंडों की तरह झूमने लगा। नजर डालकर उसने यह भी देख लिया कि पुलिस सिपाही घूम रहा है या नहीं। युवती 2-4 कदम आगे चली, फिर वह अधिक एकाग्रता से खिड़की की सजी चीज़ों को देखने लगी। सोफी निर्भीकता से आगे बढ़कर उसने उसके पास खड़ा होकर हुआ और उसे अपना टोप सिर से उठाकर बोला, क्यों कहीं घूमने चलोगी? सिपाही अब भी देख रहा था। युवती ने उंगली से एक बार इशारे में सोफी को मस्जिद तक पहुंचाने का सकता था। अपनी कल्पनाओं में वह थाने की सुखद गर्मी को पहुंच चुका था, किंतु युवती की ओर से मुंह करके खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर खुशी से बोली, जरूर दोस्त, मैं खुद ही तुम्हारे साथ घूमने चलने वाली थी। किंतु सिपाही देख रहा था। लड़की ने पीठ छिपाकर किसी तरह सोफी वहाँ से भागा। रास्ते में एक नाटक घर के सामने शान से टहलते हुए एक पुलिस वाले को देखकर उसे मन में एक शराबी का पाठ अदा करने की योजना है बिजली की तरह कौद गई। फुटपाथ पर खड़े होकर सोफी ने अपने तरस आवाज में शराबी की तरह चीख कर नाच कर चिल्लाने लगा और कई तरीके आसमान की तरह सिर पर उठा लिए। सिपाही ने डंडा घुमाते हुए सोफी की तरफ पीट कर ली और एक राहगीर से कहने लगा, यह कॉलेज के कोई लड़का है, इसे डार्विन कॉलेज को आज मैच में हराया है, इसलिए खुशियाँ मना रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है और सिर्फ हल्ला मचाएगा। इन लड़कों को कुछ ना कहने की हिदायत दी। जो मतलब एक कॉलेज था जहाँ लड़कों ने दूसरे कॉलेज को मैच में हराया था। सोफी को लगा, पुलिस को लगा कि सोफी मतलब उसी कॉलेज में का कोई लड़का है जो हराया हुआ, जो दूसरे कॉलेज को हराया, तो खुशियाँ मना रहे हैं और कुछ ना बोलने की हिदायत दी थी। सिपाही की बात सुनकर सोफी बिल्कुल निराश हो गया। क्या पुलिस भी उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे? जेल जाना उसके लिए एक अप्यार स्वर्ग की तरह लगने लगा। ठंडी हवा से बचने के लिए उसने अपने जीन कोट को बटन बंद कर लिया।
अब जो सोफी था उसे जेल जाना एक स्वर्ग की तरह लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह अब आज भी जेल नहीं जा पाएगा। श्रृंगार की दुकान से उसने सभ्य मनुष्य को श्रृंगार सुलगाते हुए देखा। अंदर जाते समय उसे अपना रेशमी छाता दरवाजे के पास रख दिया। सोफी अंदर घुसा और छाता उठाकर फिर धीरे से चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ा। श्रृंगार वाला मनुष्य जल्दी से उसे पीछे चला और मेरा छाता चोरी पर सीनाजोरी करते हुए सोफी बोला, क्या वाकई आपका छाता? फिर भी आप पुलिस क्यों नहीं बुलवाते? जल्दी कीजिए साहब, पुलिस को बुलवाइए, मोड़ पर ही खड़ा है। छाते वाले ने अपनी चाल धीमी कर दी। उसने झिझकते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं ऐसी गलती हो जाती है। दरअसल बात यह है कि आज सुबह से मैंने होटल से उठाया था। अगर छाता यह आपका ही है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सोफी चिढ़कर बोला, जी हाँ, यह मेरा ही छाता है। छाते वाला तथाकथित स्वामी मैदान से दौड़ कर भागा था। सोफी ने गुस्से में छाते को एक गड्ढे में फेंक दिया। दरअसल जो श्रृंगार के दुकान के सामने जिस आदमी ने छाता रखा था, वह छाता भी उसने किसी होटल में से उठाया था और उसे लगा कि यह सोफी का ही छाता है, तो उसने उसे छाता दे दिया। पुलिस के लिए उसका मन विरक्त से भर गया। वह तो उसे पंजों में फंसाना चाहता था और सिपाही से बुराइयों से ऊपर उठे किसी राजा के समान समक्ष रहे थे। सोफी वापस मेडिसिन चौक की ओर उसी बेंच की ओर चल दिया जहां उसने पिछली रात गुजारी थी। लेकिन एक निर्जन स्थान पर सोफी के पैर रुक गए, जहाँ एक पुराना गिरजाघर था। खिड़की से नीला प्रकाश छन रहा था। प्रार्थना के साथ संगीत की मधुर स्वर लहरा रही थी, जिससे सोफी की कानों तक पहुंची। सोफी को अपनी आत्माराम में एक परिवर्तन महसूस हुआ। जो गिरजाघर से जो स्वर मधुर गाना निकल रही थी, उसे सोफी जब कानों में पड़ी तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उसे अपने मन में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस हुआ। उसके हृदय में अपने दुर्भाग्य से लड़ने की एक बल प्रवृत्ति प्रेरणा जागृत हुई। इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकलने का उसने निश्चय किया। वह संगीत सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकलने का निश्चय किया। वह फिर एक मनुष्य बनेगा। जिन बुराइयों से उसे जकड़ रखा है उन पर वह विजय प्राप्त करेगा। वह भी कुछ काम करेगा। तभी सोफी ने अपनी बाह पर किसी पकड़ का अनुभव किया। उसके सामने एक सिपाही का कठोर चेहरा था। जब सोफी ने सोचा कि जो उसके शरीर में जो बुराइयां जकड़ रखी है उस पर वह विजय प्राप्त करेगा और वह एक आदमी बनेगा और वह भी कुछ काम करेगा। तभी एक पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाही ने पूछा। जी कुछ नहीं, सोफी ने कहा। कुछ नहीं मतलब आवारागर्दी, चलो मेरे साथ। दूसरे दिन सवेरे पुलिस कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब ने फरमाया 3 महीने की सख्त कैद। थैंक यू।